हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। इफ somehow you are not able to solve it, then in this video we will see the solution of this problem, and we also do some more problems on this topic. So आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, so that you can get the notification about the new videos on this subject. Thank you. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, गिवन द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन fxy is equal to x1 plus 3y square whole upon 4, where x varies from 0 to 2 and y varies from 0 to 1, and this function is 0 elsewhere. We have to find the marginal density functions gx, hy, also the conditional probability distribution fx given by, and evaluate this probability that x lies between 1 upon 4 and 1 upon 2 while y is 1 upon 3. इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है जहां पर x की वैल्यू 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 2 के बीच में है, लेकिन y की वैल्यू 1 अपॉन 3 है। तो recall what is the value of gx for continuous random variable। x और y continuous है यहाँ पर, तो इंटीग्रल fxy dy, fxy x 1 plus 3y square whole upon 4, limit of y is 0 to 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x अपॉन 2। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। इसी तरह से hy integral fxy dx, and here we have the limits of x varies from 0 to 2, so we put here 0 to 2 the value of fxy and dx. We have to integrate this with respect to x. After putting the limits we get this. Now join conditional density function fx given y. You know the formula fxy divided by hy. This is the value of fxy and hy हमने ऊपर कैलकुलेट किया है अभी. So the answer is x upon 2. Now the last one is probability that x lies between 1 upon 4 and 1 upon 2 given that y is equal to 1 upon 3. तो हम इन सारी probabilities को conditional probabilities को add करना है जहां पर y 1 upon 3 है और x vary कर रहा है 1 upon 4 से 1 upon 2. So here it is the solution, integration 1 upon 4 to 1 upon 2 of fx given y is equal to 1 upon 3. We again write this as fx 1 upon 3 because y is 1 upon 3 upon h 1 upon 3. तो एच वाई हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर आप y की जगह 1 अपॉन 3 रखेंगे तो h 1 अपॉन 3 की वैल्यू आएगी, और एफ एक्स वाई में y की जगह, ये एफ एक्स वाई है, इसमें y की जगह 1 अपॉन 3 पुट करेंगे आप और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा x अपॉन 2। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आएगा 3 अपॉन 64। Next problem is if x and y are two random variables having joint density function, this find probability x less than 1 and y less than 3, probability x plus y less than 3, probability x less than 1 given that y is less than 3. Probability x less than 1 and y less than 3 means we have to add all those probabilities where x is less than 1 and y is less than 3. X less than 1, x lies between 0 and 2. So x less than 1 means limit from 0 to 1.
and y less than 3 is limit from 2 to 3. fxy, क्योंकि आपने इनर मोस्ट इंटीग्रल में y की लिमिट्स रखी हैं इसलिए यहाँ dy पहले आएगा, उसके बाद आउटर में x की लिमिट है तो इसलिए x इधर आएगा. You can interchange the integration also. Simultaneously, dx and dy will interchange. When the limits are constant in double integral, there is no change when you interchange the integration. तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा अगर आप इन लिमिट्स इन इंटीग्रल्स को एक्सचेंज कर देंगे. इसमें आपने पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. फाइनल आंसर आएगा 3/8. आप इसको ट्राई करिएगा, इसको सॉल्व करके देखिए अपने आप. सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 3 है, यानी हमें ऐसी लिमिट्स निकालनी है जहां पर x और y का सम लेस देन 3 हो. तो इसके लिए हमें रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा. सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. उसके बाद x प्लस वाई लेस देन 3 में ये इनर मोस्ट रीजन आएगा जो मैंने शेड किया हुआ है. अब इस रीजन में, इस बाउंडेड रीजन में हमें x और y की लिमिट्स निकालनी है. तो x y की लिमिट्स निकालने के लिए हम वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे. जब हम वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें y की लिमिट्स मिलती हैं. तो y की लिमिट्स क्या होंगी? इस वर्टिकल स्ट्रिप के लोअर एंड पर y की वैल्यू 0 है क्योंकि ये लोअर एंड x एक्सिस पर है, और अपर एंड इस लाइन पर है जहां पर y की वैल्यू है 3 माइनस एक्स. तो y की लिमिट्स हो गई 0 टू 3 माइनस एक्स. ये पहला इंटीग्रल है. सेकेंड इंटीग्रल, अब हम इस स्ट्रिप को मूव करेंगे फ्रॉम दिस एंड टू दिस पॉइंट टू कवर द होल रीजन. तो जब ये स्ट्रिप इस एंड पर आएगी तो इस एंड पर x की वैल्यू 0 होगी, और इस पॉइंट पर आएगी जब ये स्ट्रिप तो x की वैल्यू 3 होगी. इसलिए लिमिट ऑफ x आर 0 टू 3. fxy dy मैंने पहले इसलिए रखा है क्योंकि ये y की लिमिट्स हैं. उसके बाद x की लिमिट्स आई हैं इसलिए dx बाहर जाएगा. तो पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का मतलब है जो भी fxy है हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. देन वी पुट द लिमिट्स, we get the function of x, then we integrate that with respect to x, then we put the limits of x, and then we get this answer. तो इतना कैलकुलेशन मैंने करके नहीं दिखाया है, लेकिन आप इसको अपने आप करके देखिएगा. थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 given that y less than 3. So probability x less than 1 given that y less than 3 means probability x less than 1 and y less than 3 given that probability y less than 3. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है probability a given b is probability of a and b divided by probability of b. तो probability of a given b, here a is x less than 1 and b is y less than 3. So probability x less than 1 and y less than 3 divided by probability y less than 3. Probability x less than 1, y less than 3 फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं which is 3/8. So we put value directly here, and probability y less than 3 is irrespective of values of x. So we have to consider all the values of x. Since x varies from 0 to 2, so we take the limits of x as 0 to 2 and the limits of y as 2 to 3. fxy dx dy. After solving it, we get 3/5. Problem number 2. fxy is given to us as 6y square. X varies from 0 to 1, y varies from 0 to 1. 0 otherwise. Verify that this integral value is 1. Find the probability that x lies between 0, 3/4 and y lies between 1/3 and 2. Third is find the probability x plus y less than 1. And fourth one is probability x greater than y.
and fifth one is probability x less than 1 given that y less than 2. So one by one we see the solution of each and every part. Let's take the first one. हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू वेरीफाई करनी है कि ये 1 आएगी. तो डबल इंटीग्रल है ये. इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इनर मोस्ट इंटीग्रल है सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे. तो इनर मोस्ट इंटीग्रल में dx x की लिमिट्स हैं ये, तो हमें x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है पहले. उसके बाद लिमिट्स लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी फंक्शन की. अब हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे. तो जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा. आप ये सारी कैलकुलेशन अपने आप करके देखिएगा. सेकेंड पार्ट इज हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहां पर x की वैल्यू 0 से 3/4 के बीच में है और y की वैल्यू 1/3 और 2 के बीच में है. यानी हमें इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए डबल इंटीग्रल f(x, y) dy dx. पहले y की लिमिट्स हैं, उसके बाद x की, इसलिए पहले dy आएगा फिर dx आएगा. ये मैंने इसका सॉल्यूशन करके दिखाया है. तो सॉल्व करने के बाद ये 3/8 आता है. थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 1. यानी वो रीजन जहां पर x प्लस वाई का सम, वो वैल्यूज जहां पर x और y का सम लेस देन 1 हो. तो हमें इसके लिए रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है. तो रीजन ड्रॉ किया है तो ये लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की है और जो मैंने शेड किया है रीजन ये x प्लस वाई लेस देन 1 का रीजन है. तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, यू ड्रॉ द वर्टिकल स्ट्रिप. तो वर्टिकल स्ट्रिप के लोअर एंड पर y 0 है और अपर एंड पर y की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, इसलिए y की लिमिट्स हो गई 0 to 1 माइनस एक्स. उसके बाद हम इसको मूव कराएंगे फ्रॉम दिस एंड अप टू दिस पॉइंट टू कवर द होल रीजन. तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू x की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, इसलिए x की लिमिट्स आएंगी 0 से 1. तो सबसे पहले क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करी है इसलिए y की लिमिट्स पहले आएंगी, इसलिए इसको हम पहले रखते हैं और x की लिमिट्स बाद में रखेंगे. सॉल्व करने का तरीका वही है. पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, लिमिट्स लगाएंगे. उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो द आंसर इज 1/10. साइड में इस क्वेश्चन के लिए मैंने स्टेप लिखे हैं कि मैंने लिमिट्स कैसे निकाली हैं. सबसे पहले ड्रॉ द वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, फिर गेट द लिमिट्स ऑफ y, देन मूव द स्ट्रिप ऑफ वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टली, ऐसे मूव करानी है आपको टू कवर द होल रीजन, एंड देन वी गेट द लिमिट्स ऑफ x. फोर्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y. इसके लिए भी हमें रीजन ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई का रीजन लाइन ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू वाई की. उसके बाद x ग्रेटर देन y इसके लोअर पार्ट में आएगा. यहाँ पर x ग्रेटर देन y है इस रीजन में. अब लिमिट्स ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे. उसके बाद y की लिमिट 0 से x आएगी और x की लिमिट 0 से 1 आएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो x की लिमिट दी हुई है वो 0 से 1 तक की दी हुई है. हमारा रीजन 0 से 1 तक के बीच का है, तो इसलिए x की लिमिट 0 से 1 आएगी. फिर से हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को. उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3/5. Last part is probability x less than 1 given that y less than 2. Again, by conditional probability formula, it can be written like this. इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x, y) dy dx. और इस प्रोबेबिलिटी का मतलब भी यही है, तो क्योंकि दोनों सेम एक्सप्रेशन है इसलिए आंसर हो गया 1.
एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी इस वीडियो में कि स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस और स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस क्या होती है. Let us consider two random variables x and y. They may be discrete or continuous with joint probability distribution function और joint probability mass function. अगर वो discrete हैं तो हमें joint probability distribution function given होगा और अगर वो continuous है तो joint probability mass function given होगा fxy. And marginal PDFs gx और hy भी given है अगर, तो हम उन्हें independent कब कहते हैं? They are independent if and only if fxy is equal to gx into hy. अगर आपको याद होगा दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होती हैं? जब प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट? द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर. देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन fxy should be equal to gx into hy. gx is probability distribution of x and hy is probability distribution of y. तो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना बोलकर हम इन्हें मार्जिनल बोलते हैं क्योंकि हम टू वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं और टू वेरिएबल्स में हम एक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो इसलिए हम डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल प्रोबेबिलिटी ना बोलकर इसको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बोलते हैं. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दे आर सेड टू बी स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट. इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि अगर x और y कंटिन्यूस हैं तो दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन. तो सिंपली आपको fxy की वैल्यू चेक करनी है कि gx और hy के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं. लेकिन अगर x और y डिस्क्रीट हैं तो आप इसके लिए fxy की एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक साइड में आप x की वैल्यू लिखते हैं, दूसरे साइड में आप y की वैल्यूज लिखते हैं और बीच में आप fxy की वैल्यू लिखते हैं. तो अगर x और y डिस्क्रीट हैं तो आपको इनका प्रोडक्ट हर वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा x और y की. यानी x और y के जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उन सारे पेयर्स के लिए आपको ये प्रोडक्ट इसके बराबर है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा. अगर किसी भी एक पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन इन दैट केस x और y आर सेड टू बी स्टोकेस्टिकली डिपेंडेंट. दे आर नॉट स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट. तो डिस्क्रीट के केस में इसको चेक करना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, जबकि कंटिन्यूअस के केस में इट इज वेरी इजी टू चेक वेदर टू वेरिएबल्स x एंड y आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट और नॉट. आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.